sir. I don't think he has joined yet. And respected Suman ma'am, Sandeep sir, Bhushan sir, I'm very grateful to you people to give me a chance to speak on Father of Nation today. And I always feel myself very lucky that my college teachers gave me a chance in the college to speak. Otherwise, most of us we used to call people from outside. So my lecture will not be a formal type of lecture, and it is going to be, as Khatri sir used to tell me, that this lecture should always be student friendly, and I'll try to use Hindi as well, ताकि सभी मेरे स्टूडेंट बड़े प्यार से हम एक चीज को समझ पाए when we are talking of father of nation and his thoughts for एक भारत श्रेष्ठ भारत, right? So I would start from one quotation of Gandhiji's. He says, I have nothing new to teach to the world. Truth and non-violence are as old as hills. तो मेरे को दुनिया को सिखाने के लिए कुछ नया तो है नहीं है. ये सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितना और पर्वत. So the two pillars of the thought of Mahatma Gandhi are truth and non-violence. Very interestingly, you would be surprised to know Gandhiji was not a very smart and good-looking man. Even then, the smartest models of the world wanted to have a pic with him, जिसको आजकल हम selfie कहते हैं. He was not a good lawyer, 45%, but the biggest judges came to consult him. He was not intelligent enough, always got third division. But the biggest philosophers used to consult him. This is not which I'm telling you. This is what his secretary, Pyarelal, has written. Because Pyarelal used to remain with Gandhi all the time. He said, I don't know what is there in this man. He's not good looking. Even the topmost Hollywood star just want to have a pic with him. He's not a good liar. Even then the biggest judges are coming and consulting him. And he is not an intelligent guy. His writings, you can see, even though the biggest philosophers are coming to consult him. So imagine what was there in Gandhi. Now, अभी जैसे हमारी प्रियंका भी बता रही थी about his personality, तो कमाल की बात है कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा हमने मानते हैं, किसको मानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन is considered to be the most intelligent guy on this earth till date. तो कहा जाता है कि उसने अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा यूज किया था. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं गांधी के बारे में? अभी इंग्लिश में तो प्रियंका ने बता दिया था, मैं उसको हिंदी में बता देता हूँ. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हड मास का पुतला जिसे हम गांधी कहते हैं, आने वाली नस्लें शायद ही इस बात पे विश्वास करेगी कि कभी इस धरती पे आया होगा. इमेजिन अ पर्सन none other than Albert Einstein is using. Now, Earl Mountbatten, the last Governor General of India, he is telling about Gandhi. He says Mahatma Gandhi will go in the history at par with Jesus and Buddha. A Christian Governor General comparing him with Jesus and Buddha. And he also calls him one man boundary force. आपको पता जब पार्टीशन होती है, इंडिपेंडेंस हमारी जो है वो बहुत खुशी के साथ नहीं आई थी. एंड गांधी वाज नेवर सो हैप्पी फ्रॉम दैट. जब आज़ादी हुई थी ना, उस पर बात करेंगे, तो गांधी जी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे. वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे नौखलई में, मरण व्रत पे. कैसी आज़ादी जो इतनी खून बहा के आई है, मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए. व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल हु वर किल्ड. तो उस पार्टीशन में वेस्टर्न बॉर्डर, यहाँ पे पाकिस्तान है, ईस्टर्न बॉर्डर जो ईस्टर्न पाकिस्तान था अभी वो बांग्लादेश हो गया है. तो वेस्टर्न बॉर्डर पे सारी इंडियन आर्मी लगी हुई थी, राइट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे. गांधी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर अकेला भूख हड़ताल पे बैठ के ही कुड कंट्रोल द राइट्स. तो माउंटबैटन ने एक लाइन बोली, वाओ, ही इज द वन मैन बाउंड्री फोर्स. एक ही बंदा बाउंड्री फोर्स है. अभी जितने लिटरेचर के बच्चे बैठे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप सबने सुना, वंडरफुल अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो जॉर्ज बर्नार्ड को पूछा गया कि व्हाट आर योर इंप्रेशंस अबाउट गांधी. व्हेन ही मेट गांधी, तो उसको पूछा व्हाट आर योर इंप्रेशंस अबाउट गांधी. ही सेड इंप्रेशंस अबाउट गांधी, बट वेरी सरप्राइजिंगली you might as well ask for someone's impressions about Himalayas. Himalayas का क्या impression दोगे आप? तो he is as big as Himalayas.
ये मैं गांधी जी की बहुत ज्यादा वो आपको सिफ्तें सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मार्टिन लूथर किंग जो आजादी की शुरुआत, जो रेशियलिज्म के विरुद्ध आवाज उठाई अमेरिका में, मार्टिन लूथर किंग, व्हाट डज ही सेज, फ्रॉम माय बैकग्राउंड आई गेन्ड माय रेगुलेटिंग क्रिश्चियन आइडियल्स, फ्रॉम गांधी आई लर्नड माय ऑपरेशनल टेक्निक। तो प्रैक्टिकल तो गांधी ने तो खुद कहा था, एनएसएस वालों के लिए बड़ी बधाई की बात है। He said, I am not an academician. Whatever I have written, forget about it. That will not remain. What I have done will always remain. तो एनएसएस के लिए गांधी जी का इतना प्यार क्यों है? वो कहते हैं कि आपने अगर सड़क पे जाते हुए एक किल पड़ा सड़क के ऊपर, उसको उठा के साइड पे रख दिया तो मेरे से तो आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया जिसको मैं नोबेल प्राइज के बराबर मानता हूँ। तो एनएसएस वाले तो काम ही ये करते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं, लास्ट में चार्ली चैपलिन को पूछा गया गांधी के बाद, मिलने के बाद, कहता नो नीड ऑफ मीटिंग जीसस क्राइस्ट नाउ, आई हैव ऑलरेडी मीट ऑन दिस अर्थ इन द शेप ऑफ गांधी। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ देम सेड गुड थिंग्स अबाउट हिम, देयर वर मेनी बैड थिंग्स अबाउट आल्सो गांधी। विंस्टन चर्चिल, ही वाज द मोस्ट पावरफुल मैन ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, आप लोगों को पता है। तो विंस्टन चर्चिल को पूछा गया योर व्यूज अबाउट गांधी, व्हाट वाज हिज व्यूज? ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन दिस अर्थ, most dangerous man on this earth. He's not hurting me at all and he's hurting me the most. ये कोई मेरी आगजनी नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है, कुछ करता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा तंग तो इसने कर रखा है। तो that was the views about गांधी। अब गांधी जी के व्यूज जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर आने से पहले मैं एक और बता दूं कि टाइम मैगजीन एक सर्वे करता है फॉर द 20th सेंचुरी कि हु इज द मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। बहुत सारी एंट्रीज आई, तो मैन ऑफ द 20th century was declared Albert Einstein and Gandhi was runners up। बहुत कम वोटों से गांधी was second man of the century। कितने बड़े बड़े सेंचुरी हुए हैं, लेनिन जैसे हुए हैं, माओ हुआ है, चर्चिल हुआ है, कितने प्रेसिडेंट अमेरिका ने दिए हैं, बट द मैन ऑफ द सेंचुरी इज Albert Einstein and the runners up is Mahatma Gandhi। Not only this, he is the Asian of the century। एशिया का सबसे ग्रेट मैन, एशियन ऑफ द सेंचुरी, ये किसी इंडियन मैगजीन ने नहीं, दिस इज डिक्लेयर्ड बाय द टाइम मैगजीन। ओके, नाउ कमिंग टू दैट थिंग, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब एक क्वेश्चन, चलो हम ऑफलाइन मोड पे हैं, आप अपने क्वेश्चन बाद में करना। आई वुड गिव एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन बिकॉज मुझे पता है कि गांधी जी के ऊपर उतने प्यार करने वाले नहीं जितने सवाल करने वाले और हेट करने वाले लोग भी हैं। तो कई बार हम बिना पढ़े गांधी जी के ऊपर या किसी के ऊपर भी, वी डोंट हैव एनी, जैसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म इज द इजीएस्ट टास्क एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। क्रिटिसिज्म करना तो बहुत आसान काम है और बहुत मुश्किल भी है। आसान कैसे है? यार गांधी को तो कपड़े डालने नहीं आते थे, धोती में घूमता था, ये होगी क्रिटिसिज्म। डिफिकल्ट कैसे है? शायद आप लोगों को नहीं पता है, लाइब्रेरी में जाओ, दीप्ति मैम इज सो कोऑपरेटिव इन दैट वे, तो एग्जीबिशन भी लगाते हैं। गांधी की किताबें, सिर्फ उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, हिंद स्वराज पढ़ो, एंड 94 वॉल्यूम्स, 94 इतने मोटे मोटे वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू। जितना भी उन्होंने लिखा अपने न्यूज़पेपर में, इंडियन ओपिनियन में, हरिजन में, उस सारी राइटिंग्स पढ़ के देखो, उनके विचार सुन के देखो, देन क्रिटिसाइज हिम। सो नाउ कमिंग टू एक भारत। एक भारत की बात सबसे पहले इंडिया में कौन करता है? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? एंड वी कॉल गांधी फादर ऑफ नेशन। छोटा किसी को बाप कहना बहुत छोटी चीज नहीं होती है। व्हेन वी कॉल गांधी फादर ऑफ नेशन, इतना बड़ा दर्जा हमने दे दिया, एंड वी हैव केप्ट हिम अबव भारत रत्न। भारत रत्न गांधी के लिए नहीं बना है। गांधी जैसे इंग्लैंड का महाराजा है तो वो फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहते हैं, तो गांधी इज अबव भारत रत्न। तो व्हाट वाज दैट वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम फादर ऑफ नेशन। ये तो आप सबको पता है कि गांधी जी को बापू का नाम किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वन इलेक्शन इन 1939 अगेंस्ट द कैंडिडेट ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी वाज नॉट हैप्पी, तो उसको लगा कि बापू इज नॉट हैप्पी, ही केम बैक एंड ही रिजाइंड कि बापू यू शुड बी हैप्पी, वी कैन नॉट सी यू अनवाइड। अब फादर का दर्जा मिल गया, फादर ऑफ नेशन का कैसे मिल गया?
बड़ी इमेजिन करने, कभी आपने सोचा होगा कि व्हाई वी कॉल हिम फादर ऑफ नेशन, और किसी को क्यों नहीं बोलते? नोटों पे फोटोएं लगी हुई हैं, हम बड़े गाने सुनते हैं कि इस शहीद की फोटो क्यों नहीं लगती, उसकी क्यों नहीं लगती, व्हाई ओनली गांधीज फोटो? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री व्हेन गांधी कम्स टू द सीन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. गांधी जी स्टार्टेड हिज कैरियर का मतलब है, एक तो उनका लॉ का कैरियर था कि कैरियर एज अ स्ट्रगलर, एज अ रिफॉर्मर, एज एन एजिटेटर. ही स्टार्टेड दैट थिंग इन साउथ अफ्रीका. तो इधर इंडिया में भी जो यंग लड़के थे, वेस्टर्न क्वालिफाइड, कांग्रेस में भी दो लोग थे, गरम दल और नरम दल, आपको पता है. तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, राणा डे, ये सारे लोग, इधर एक मूवमेंट चल रही है. और इधर वो बोलते कि व्हाई नॉट टू कॉल गांधी जी, ही इज डूइंग सो गुड इन साउथ अफ्रीका, हम उनकी अगुवाई में क्यों ना अपनी फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करें. अब आपको पता चलेगा कि फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं और आपका नेशन कब पैदा होता है. व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, आई एम रेडी टू वर्क विद यू पीपल फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, बट टेल मी व्हाट इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू आर वर्किंग. उन्होंने कहा जी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड यू विल surprised to know Gandhi said Indian National Congress. Who is Indian National Congress? तो ऐसे टाई लगा के बैठे हुए, इंग्लैंड से पढ़ के आए, है ना, जितने भी दादा भाई नारोजी और ये जो राणा डे, गोविंद राणा, जितने भी ये लोग सब इंग्लैंड से पढ़ के आते थे, टाई लगाई, वेस्टर्न सूट शर्ट कसे हुए. तो गांधी जी स्माइल्ड एंड सेड इंडियन, यू डोंट लुक इंडियन फ्रॉम एनी साइड. इंडियन लोगों को कहाँ टाई लगानी आती है यार, कहाँ सूट है इंडियन के पास. 80% लोग तो आधे नंगे रहते हैं इंडिया में. मेल्स डू नॉट यूज टू हैव शर्ट, नहीं तो धोती लगा ली, कहाँ से दर्जी ढूंढेंगे, कौन पैसे खर्चेगा. पूरे गांव में एक पजामा होता था, जिसकी शादी है वो उधारा मांग के ले जाता था. दैट वाज इंडिया व्हेन गांधी कम्स टू द सीन. तो ही सेड इंडियन तो आप नहीं लगते, नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस. भाई नेशनल तो तब है ना नेशन हो. मुझे बताइए आपका नेशन कौन सा है. आप भाई बैठे हो ना चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से पटियाला जाते थे तो नई स्टेट शुरू हो जाती, महाराजा ऑफ पटियाला. पटियाला से आधा घंटा आगे नाभा, महाराजा ऑफ नाभा, महाराजा ऑफ जींद, महाराजा ऑफ नालागढ़, पता नहीं कितना बड़ा नालागढ़. तो हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, इतनी ज्यादा प्रिंसली स्टेट, बटा हुआ इंडिया, कोई कंसेप्ट ही नहीं. ही सेड यू आर नीदर इंडियन नॉर नेशनल. तो कांग्रेस की तो बात ही क्या करोगे. If you want to have an Indian nation, first have the national identity. Let it be one nation from Kashmir to Kanyakumari. And you should remember, 90% of your population is living in villages, while sitting in Bombay, Badruddin Tyajbi Hall and टाई लगा के फैन ऑन करके अंग्रेजी में 4 बातें करने से आप नेशन नहीं बना सकते. तो गांधी सेड कि लेट अस गो टू द विलेजेस. गांधी भी टाई लगाते थे, नो डाउट, उनकी ड्रेस थी एज लॉयर. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, बिहार, चंपारण, मस्ट हैव सीन. तो वो आके वहां पे उन लोगों की ड्रेस डालते हैं, धोती. दौरा में कभी सूट नहीं डाला, ऐसे ही इंग्लैंड भी जाना, उनकी ड्रेस डालते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं. आप लोगों को मैं बोलूंगा कि जरूर वॉच करना. बिन किंग्सले की फिल्म है, अभी कल ये सर वो डाल रहे थे आपके इसी में वेबिनार में, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे थे. तो उसमें आपने ये गांधी मूवी यू मस्ट वॉच, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, 6 ऑस्कर्स मिले हुए हैं. तो उसमें जब ये गांधी के ऊपर बायोग्राफी लिखने के लिए आते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, बड़े फेमस हैं, उन्हीं की बुक को बेस बना के फिल्म बनी थी. तो रेलवे स्टेशन से गांधी को टेलीग्राम आती कि हम रेलवे स्टेशन लेने आओगे. गांधी सेड यस माय गाड़ी आएगी, मेरी आएगी, ऑक्सफोर्ड कार है मेरे पास. दैट गोरा वाज कंफ्यूज्ड. ऑक्सफोर्ड कार तो मैंने यार पहली बार सुनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो है. तो गांधी जी सेड फोर्ड कार एंड दैट वाज रन बाय ऑक्स. तो बैल चला रहे थे उसको और पीछे कार थी, दैट वाज ऑक्सफोर्ड. तो उसके बाद में फिर वो ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द पीपल. जो चरखा चलाते हुए आप पिक्चर्स देखते हैं, आज जो चरखा पकड़ के बैठ जाते हैं ना, वो सिंबल है.
तब था कि लेट अस बाइकआउट। आजकल हम कॉटन इज एन इंडियन कंसेप्ट, कॉटन की ओर बहुत है। मैं भी कहूँगा जो कॉटन की टी शर्ट है तो कॉस्टली है, सिंथेटिक नहीं चाहिए। उस समय सिंथेटिक और जो रेशमी कपड़ों का रिवाज ना, वो पॉलिएस्टर आती थी इंग्लैंड से। तो गांधी से लेट अस बाइकआउट, जब इनका माल ही नहीं खरीदेंगे प्रॉफिट कहाँ से होगा, स्वदेशी। तो ही सेड खुद हम बनाते हैं, क्या उसको कहते हैं, धागा, खुद कपड़ा बनाएंगे, खुद पहनेंगे। तो गांधी सेड के नाउ द masses, the 90% of the people living in villages have come together. Now we are a nation. 10-15 लोग, 50 लोग बॉम्बे में बैठ के, दिल्ली में बैठ के हॉल में चाय कॉफी अंग्रेजों की तरह पी के और बोले कि यस वी आर इंडियन नेशनल कांग्रेस। नो, यू आर नॉट अ नेशन। सो जब हम फादर कहते हैं तो रिमेंबर इट, आपको कोई इंटरव्यू में भी पूछता है कि व्हाई वी कॉल गांधी एज फादर ऑफ नेशन, बिकॉज ही हैज गिवन बर्थ टू द नेशन। See, before coming of Gandhi, where was your nation? Divided into so many smaller states. A handful of people, English speaking, they used to call them Indian National Congress. He made the movement a mass movement while going to villages. जब डंडी मार्च होता है, अब फिर आप देखिए 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे जबरदस्त चलती है अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ कि लीडरलेस जो मूवमेंट्स होती है ना, वही मूवमेंट्स फेल ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ लीडर्स। अब मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं हरियाणा से, माइंड नहीं करना, मैं आपसे प्यार से बात करता हूँ कि हरियाणा में एक मूवमेंट हुई 2.5 दिन की, जाट की अगेंस्ट रिजर्वेशन, 2.5-3 दिन। यू नो हाउ मच लॉस वाज देयर, कितना लॉस हुआ था, यू कांट इमेजिन। 1 साल के बजट के बराबर। अपनी शॉप तोड़ दी, बड़े बड़े रोड्स ही तोड़ के रख दिए, शोरूम जला दिए। किसके? अपने। किसने? हमने। Why it happened? There was no leader. There need to इतनी जोश, इतनी अच्छी फोर्स। की मूवमेंट 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है, पीक के ऊपर है, इतनी पीक पे है कि अंग्रेजों की कमर टूट गई है। नेहरू इज वेरी हैप्पी, फ्रीडम स्ट्रगलर्स आर वेरी हैप्पी, पटेल इज वेरी हैप्पी कि बापू कमाल कर दिया। मीन टाइम में एक इंसिडेंस हो जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंस। चौरी चौरा इंसिडेंस में क्या, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और पुलिस मैन अंदर ही जल जाते हैं। 22 आई थिंक इन नंबर, आई फॉरगॉट द नंबर, यू कैन चेक इट आउट। वो अंदर ही मर जाते हैं। तो गांधी गेट्स द खबर। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन दैट मूवमेंट एंड गांधीज मूवमेंट। इतना बड़ा नेशन है, सोशल मीडिया नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बट गांधी से स्टॉप दिस मूवमेंट, आई डू नॉट नीड दिस मूवमेंट। नेहरू सेज बापू इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं, छोटे मोटे काम होते रहते हैं। दिस इज नॉट छोटा मोटा काम नेहरू। गो एंड आस्क द चिल्ड्रन ऑफ द पुलिसमैन हु आर किल्ड इन द पुलिस स्टेशन। Go and ask their mothers who have lost their children. Go and ask their wives who have become vidva, widows. This can be a small thing for you, and that big movement for you. For me, this movement is no more a big movement, and that incidence of killing 22 or 29, whatever people, is a very big issue for me. इतना मनाने के बाद, that old man says no means no. Movement stop there only. Lot of criticism कि यार अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, क्या हुआ, एक पुलिस स्टेशन ही जला दिया तो क्या हो गया, 22 लोग ही तो मरे हैं। अभी अंग्रेज भागने वाले, अंग्रेजों की बीवियों ने जाना शुरू कर दिया था कि हम नहीं यहाँ रहेंगे, माहौल बहुत खराब हो गया। लेकिन नहीं, गांधी स्टॉप्स दैट, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये गांधी जी कहते आई हैव नथिंग न्यू टू टीच टू द वर्ल्ड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज हिल्स। तो इतनी पीक पे आई हुई मूवमेंट को एक पल में फिनिश कर देना, खत्म कर देना, दैट वाज गांधी। और उस नेशन के बाद गांधी वाज नेवर इन फेवर ऑफ डिवाइडेड इंडिया। आपको पता होगा कि जब गांधी की गोली भी बजती है, नथुराम गॉडसे शूट करता है, तो गांधी वाज गोइंग टू पाकिस्तान टू कन्विंस जिन्ना टू कम बैक। दैट वाज द सेकुलरिज्म ऑफ गांधी। ये ऐसे नहीं था, आपको पता कि हम बड़ी बार करते हैं कि कुछ मेरे बच्चे मुस्लिम भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो
हम कहते हैं जी मुस्लिम सर बड़े कट्टर होते हैं, मेरे साथ बच्चे ना अपने आ जाते हैं, इस लेक्चर के बाद भी बात करेंगे, सर देखो मुसलमान तो कट्टर होते हैं, हिंदू कट्टर नहीं होते हैं, ये ऐसे है वैसे है। तो मुस्लिम रिलीजन जो मुस्लिम इस्लाम को मानता है, ही इज रिलीजियस पर्सन, अदर्स आर काफिर्स। बट सी द ब्यूटी ऑफ द लीडरशिप ऑफ गांधी। 1920 के आसपास हिस्ट्री वालों को पता है खिलाफत मूवमेंट चली थी, टर्की से शुरू हुई थी, और द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ खलीफा। तो खिलाफत मूवमेंट के लिए इंडिया में भी पहुंच गई वो। जब इंडिया में खिलाफत मूवमेंट पहुंचती है तो उसके लीडर की जरूरत पड़ती है कि whom we should regard as the leader of खिलाफत मूवमेंट। Gandhi is not Islamic, he is not a Muslim. By that definition, he is a kafir. And to your surprise, give me any example in the world. The leader of the Khilafat movement was appointed, selected, none else, Mahatma Gandhi, by the Muslims. That's why we call him father of nation. ये होता है एक भारत, यही है श्रेष्ठ भारत, कि दिल्ली में, बॉम्बे में, मेट्रोज में बैठ के अंग्रेजी में टाई लगा के बातें करने से इंडियन नेशन नहीं बनता। इंडियन नेशन 90% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, हाफ क्लैड है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद देम, स्टार्ट रिमेनिंग इन देम। हम बात तो लिखते हैं, गांव के ऊपर आर्टिकल लिख देते हैं, बड़ा अच्छा गांव की हालात ये है यार, यू गो एंड लिव इन विलेज। आई एम सो लकी, आई फील माई सेल्फ सो लकी कि 22 years 21 years of my life I graduated by living in a village. दिन में पढ़ते थे, रात को लाइट ही नहीं आती थी, ठीक है ना। स्लीपलेस नाइट्स, 12 kilometers going on cycle and coming back on cycle. Sometimes you don't have the cycle and दूसरा बंदा आपको साइकिल ऑफर करता है कि इस शर्त पे कि तू चला, मैं बैठूंगा तो साइकिल मेरा होगा। तो दैट वाज इंडिया, जिसको गांधी जी ने पहचाना घर घर में, बच्चों में। तो हिंदी में बातें होती थी, पंजाबी में क्या गाने होते थे, फोक सॉन्ग, बापू गांधी ने चरखा किया चालू, पंजाबी से। इन ऑल लैंग्वेज, तमिल विल सिंग इन तमिल। तो दैट इज द अपील ऑफ अ लीडर, अ सिंगल पर्सन वुड यूनाइट 30-40 करोड़ का मुल्क, और एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूरे इंडिया का, दैट इज नेहरू, सॉरी दैट इज गांधी। एंड ही आर्ग्यूज विद द ब्रिटिशर्स लाइक एनीथिंग। तो अनडिवाइडेड इंडिया का जो था गांधी जी का सपना, ही जस्ट वांटेड टू हैव एक भारत, श्रेष्ठ भारत। एक भारत का कंसेप्ट हैज बीन गिवन बाय नन एल्स बट Mahatma Gandhi. Had he been living today, he would not have celebrated this Independence Day. I promise you. Because 15th August 1947, whole of India was celebrating. नेहरू जी रेडियो पे बोल रहे थी, उनकी स्पीच बड़ी फेमस है, ट्रिस्ट विद डिस्नी। तो नेहरू जी रेडियो पे बोल रहे हैं, जश्न चल रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, एंड दिस ग्रैंड ओल्ड मैन इज सिटिंग इन नौखलाई, वेस्ट बंगाल, भूख हड़ताल पे। इमेजिन करो, घर में शादी हो और बाप भूख हड़ताल पे बैठा हो। दैट वाज द सीन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मस्ट वॉच द मूवी गांधी, हॉलीवुड। आपको बहुत कुछ पता चलेगा। उसमें बड़ा एक सीन अच्छा आता है, जो लोगों ने देखी है, हमारे टीचर्स ने देखी होगी। ओमपुरी ने वो रोल किया उस बंदे का, वो दंगई है एक वहाँ पे कलकत्ता में। तो नेहरू और पटेल जब फ्री हो जाते हैं यहाँ से आज़ादी की सेलिब्रेशन से, फिर गांधी को मनाने जाते हैं कि बापू जूस पी लो। डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी सेहत बहुत बिगड़ गई, अब ज़्यादा दिन आप रह नहीं पाओगे ऐसे, तो वी नीड यू, नेशन नीड्स यू। सेड नो, जब तक पूरे दंगे खत्म नहीं हो जाते, आई विल नॉट हैव एनीथिंग। फिर क्या हुआ, अब तो कहते जी अब तो सारे दंगे रुक गए हैं। कहते नहीं, एक अभी भी है, उसका आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गाय, ओमपुरी ने उसका रोल किया है। एक अभी भी है, जब तक वो भी हथियार नहीं फेंकता। तो उसको पता कितना निर्दयी बंदा, वो शक्ल से बनाया हुआ, तो वो उसने हाथ में डांट पकड़ा हुआ, एक हाथ में रोटी पकड़ी हुई है। तो सो टचिंग सीन, आके अपना वो जो डांट है, जो हथियार, वो फेंक देता है और रोटी करता है, ये ले बापू, फेंक दिया मैंने हथियार, खाब।
That was the love which he enjoyed. That was the love which Gandhi enjoyed, which people gave him. That Muslim राइटर ने राइटर दंगई, हथियार फेंकता और रोटी लेके आता, खा, तेरे को हम मरने नहीं देंगे। तो इसलिए हम बताते हमारी प्रॉब्लम क्या आई है, एक काम में नहीं आती, सभी कामों में आती है। तुलसी हमारी है, पेटेंट यूएसए कराएगा। हल्दी हमारी है, पेटेंट यूएसए में होगा। जीन कॉटन तुम्हारा है, लेकिन पेपे यूएसए लिखेगा। तो गांधी हमारा है, हमें नहीं समझाएगा। जब यूएसए बताएगा ना, टाइम मैगजीन बताएगा कि ही इज एशियन ऑफ द सेंचुरी। तो आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी हैवंट रेड गांधी। सिर्फ ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ लो, ओनली ऑटोबायोग्राफी, वो भी आजकल पेशेंस नहीं है। एक बड़ी एक अब्रिज्ड एडिशन भी है उसका, छोटी, उसकी बहुत सारी कॉपियां दीप्ति मैम ने लाइब्रेरी में लाके रखी हुई हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, गुजराती में भी है। यू मस्ट रीड। तो उसके बाद में जो अपने गांधी जी ने बोला कि मेरे को एक ही भारत चाहिए, मेरे को अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए, फिर लास्ट में गांधी कहता आई एम हैप्पी। और कभी कभी जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में झगड़ा होता था, झगड़ा इन द सेंस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आज वाला झगड़ा नहीं है कि एक लीडर कहता है तू पप्पू है, दूसरा कहता है तू गप्पू है, ऐसा झगड़ा नहीं होता था। देयर वाज द स्टैंडर्ड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे। मैनी पीपल वांटेड सरदार पटेल शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, नॉट नेहरू। अभी भी आप लोग देखोगे कि सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है सरकार ने, और ये आप लोगों के मन में भी आता है कि सरदार पटेल वाज वेरी एग्रेसिव। सरदार पटेल होते तो कश्मीर प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद को कैसे खदेड़ा था। Everything is okay. It was Gandhi who had to decide who should be the prime minister, and Gandhi decided in favor of Nehru. अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, my book on Nehru, they must have read it, उन्होंने पढ़ी भी होगी। तो नेहरू was a natural choice, उस पर हम नहीं जाएंगे, that needs a separate lecture। बेटा मुझे टाइम बता देना, प्रियंका टाइम कितना है? हेलो सर, यस, अभी यू कैन स्पीक, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स 12:05 नाउ। हाँ, मैं अभी और कितना बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस हिसाब से चलूंगा ना, फिर जितना टाइम मुझे और दोगे, डिस्कशन के लिए भी बच्चों को टाइम चाहिए होगा। सर आप 12:30 to 12:45 तक फाइंड अप कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर माय नेम इज हिमानी। तो उस पे कार्ड पे प्रियंका था ना, आई थॉट। नो सर, माय नेम इज हिमानी सर। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके फाइन, यस सर। राइट। तो ऐसी चीजें, बड़े कमाल की चीजें, छोटी छोटी चीजों में। तो हिंद स्वराज में नेहरू गांधी ने लिखा है कि रेलवेज इज बैड, आई जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय रेलवेज, बिकॉज रेलवेज ने क्या किया कि पंजाब में पैदा हुआ जो सामान था वो उठा के गोवा में फेंक दिया, गोवा का इधर। तो ही वाज हिमसेल्फ ट्रैवलिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़े कमाल का था। ही वाज हिमसेल्फ ट्रैवलिंग इन ट्रेन। तो प्रेस रिपोर्टर पूछा, देखा बापू आप झूठ बोलते हैं, तो हाउ, आपने बोला था रेलवेज आर नॉट गुड, आई विल डिस्ट्रॉय इट। तो कहता आप खुद इसमें सफर कर रहे हो? कहता यस टू डिस्ट्रॉय इट। कहता कैसे? कहता मैंने टिकट ही नहीं ली, अपने बंद कर जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें। एक और चीज, एक तो हमारे रिलीजन में हम किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप कर लो थोड़ा म्यूट उसको। तो एक तो हमने देखा कि रिलीजियस इंटॉलरेंस को कैसे खत्म करती है खिलाफत मूवमेंट में, मुस्लिम्स मेक हिम एज लीडर। पूरा नेशन एक बंदे को बेचता है इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। और एक और प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी है, जो अभी भी है, जो एक भारत नहीं होने दे रही, कास्ट। अगर हम मनु का सिस्टम भी लें तो वर्ण तो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी हमारे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर जो बैठे उनको तो पता है कि फिर इतनी कास्ट, यू नो हाउ मेनी कास्ट आर देयर इन इंडिया, यू विल बी सरप्राइज्ड, मोर देन 7,000। 3,000 के आसपास तो ओबीसी हैं। तो 7,000 कास्ट कैसे बन गई? अब हमने रिजर्वेशन करी कि कास्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करें, कि जब बंदे का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अप होगा तो ऑटोमेटिकली सोशल स्टेटस अप होगा। ऑफ कोर्स सोशल स्टेटस अप तो हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस भी अप हुआ, लेकिन कास्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई।
स्टिल कास्टिज्म तो वैसे ही चलता रहा, अभी भी चलता है. स्टिल people prefer to arrange the marriages of their children in the same caste. आज भी कास्ट के नाम पे दंगे होते हैं. तलन कांड पंजाब में आप भूले नहीं होंगे, जट वर्सेस दलित. तो यहाँ तक कि हर कास्ट, थोड़ा लाइटर मूड में बच्चों को बोर हो रहे, मैं बता दूं कि जैसे सारे गाने आते हैं जट जट जट, है ना, तो इसी तरह से दूसरी कास्ट वालों ने भी गाने शुरू करते, पंडितां दे मुंडे, है ना, पंडितां दे काके. फिर दिस इज नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स. अभी गाना आया खड़के धड़के करते रहंदे पुत चमारा दे ना. तो व्हाट इज दिस कास्ट कॉन्शियसनेस. राजपूतां ने अपना गाना कढ़ दिता कि कास्ट हैज कंटिन्यू टू स्टेट. रिजर्वेशन पॉलिसी ने सोशल स्टेटस अप किया, नो डाउट, इकोनॉमिक स्टेटस अप किया, लेकिन कास्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करी. उसके लिए गांधी जी का कितना बढ़िया सोल्यूशन था, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत का, कमाल का. He said, I give you a solution to end casteism in India. He said, I will attend only those marriages which will be intercaste. उसके बाद गांधी जी ने कोई मैरिज अटेंड नहीं करी. उसी मैरिज पे जाऊंगा जो मैरिज इंटरकास्ट होगी. That way I followed Gandhi, my marriage is intercaste. तो इंटरकास्ट मैरिज का क्या था कि जब एक की कास्ट और होगी दूसरे की और होगी तो बच्चे की अपनी कास्ट डाइल्यूट हो जाएगी. बेशक वो फादर का सरनेम लिखेगा लेकिन उसके नानके तो दूसरे सरनेम के होंगे, दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट के होंगे. कितना अच्छा सोल्यूशन था. एंड इमेजिन, उसके लिए फिर गांधी ने कहा था कि गिव देम इंसेंटिव्स. इंसेंटिव क्या है? 2 रिजर्वेशन उसको जो इंटरकास्ट मैरिज करता है. देखो धड़ाधड़ होंगी, कहाँ रह जाएगी कास्ट. अभी भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कुछ पैसे देता है. हमारे टाइम पे तो 5,000 थे, आज कल पता नहीं 2-3 लाख हो गए हैं शायद इंटरकास्ट मैरिज के लिए. बट उसमें कंडीशन है वन ऑफ द पार्टनर शुड बी अ दलित शेड्यूल्ड कास्ट. तो चाहे ओबीसी में भी हो, इंटरकास्ट मैरिज, ये गांधी जी का सोल्यूशन था, बहुत अच्छा सोल्यूशन था. इसके ऊपर भी मतलब कि कोई गवर्नमेंट ने सीरियसली काम नहीं किया. एक मैं हर लेक्चर में एक चीज जरूर बताता होता हूँ, पीछे भी जिन्होंने अटेंड किया था एनएसएस में भी, लाइब्रेरी में भी, कि गांधी जी ने 7 सिन्स बताए हैं, पाप. एक तो हम सिन वो करते ना, ये हत्या ना करो, वो ना करो, फलाना ना करो, लेकिन हमारी आम दिनचर्या में यू एंड मी पीपल, हमारे 7 सिन है. अगर उनसे बच जाए तो वी कैन हैव द बेस्ट नेशन. वो सिन कैसे हैं? पहला है वेल्थ विदाउट वर्क, सबसे बड़ा पाप. जो पैसा बिना काम के आता है, अब डोंट माइंड इट. अब देखो कॉलेज में जो आपके लड़ाइयाँ होती हैं कॉलेजेस में, है ना, कई बार गोली भी चल जाती है, सिर फट जाते हैं, जेल चले जाते हैं. कौन है? दोज हु गॉट द वेल्थ विदाउट वर्क. पापा जी ने गाड़ी ले दी, थार रखी है मुंडे ने, किसी के पास तो इमेजिन, हम तो इवन आफ्टर जॉब वी आर ऑन अ सिंपल टाटा कार, और यहाँ स्टूडेंट लाइफ में इंडेव और फॉर्च्यूनर आ जाती है. जेब में पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, तो वो क्यों है? दैट इज मनी विदाउट वर्क, दैट इज अ सिन. मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जब ये पैसे लेके भागते हैं 11,000 करोड़, मनी विदाउट वर्क, वेल्थ विदाउट वर्क, दैट इज अ सिन. तो एनएसएस वालों को मैं क्यों लाइक करता हूँ इस मामले में, खुद भी एनएसएस का रह चुका हूँ, कि नॉट मी बट यू, कितनी अच्छी बात है. गांधी जी कहते थे ऑलवेज डेवलप अ हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन यू आर एक्चुअली पेड फॉर. आपको मानिए आपका जो एम्प्लॉयर है वो 50,000, 10,000, 20,000 सैलरी देता है 8 घंटे की. 8 घंटे होने के बाद भी जाते जाते आप 4 काम करके जाओ, यू विल बी हैप्पी कि आप मुझे 20,000 देते हो लेकिन मैं काम 21,000 का करूंगा, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी. भाई जापान इज सो डेवलप. जापान में स्ट्राइक पता कैसे होती है? जिस दिन एम्प्लॉइज को कोई डिमांड बनानी होती है वो काले बिल्ले लगाएंगे, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करेंगे, लंच ब्रेक भी नहीं करेंगे, दे विल वर्क मोर. और उधर के एम्प्लॉयर भी हमारे जैसे नहीं है. क्या हो गया यार, ये तो बीमार पड़ जाएंगे, 12 घंटे काम किया, लंच ब्रेक भी नहीं करी. दे विल इमीडिएटली लिसन टू देम.
तो हेल्थ विदाउट वर्क इज अ सिन। दूसरा एनएसएस को बहुत अच्छा है। एक तो मैंने कहा था कि हैबिट ऑफ डूइंग मोर फॉर विच यू आर एक्चुअली बीइंग पेड फॉर, जितने के लिए पेड उससे ज्यादा। तो यू हैव डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ डूइंग फॉर की सेवा बिना पैसे के, बिना किसी लालच के सर्विस, राइट। और दूसरा सिन जो है प्लेयर विदाउट कॉन्शियस, हैदराबाद में जो होता है और वो दिल्ली में होता है, जो रेप्स होते हैं, रेपिस्ट ट्राई टू सी प्लेयर but he doesn't have the conscious, the biggest sin. You have the right to have player but with conscious, right? Third, knowledge without character. नॉलेज तो हमारे वो संस्कृत के श्लोक ना जगह जगह अपने दीवारों पे लगे हुए हैं। मुझे संस्कृत तो आती नहीं, इसका मतलब है कि मैन विदाउट नॉलेज इज अ बीस्ट, जानवर है, गधा है। तो नॉलेज तो बहुत अच्छी चीज है, पर जो नॉलेज विदाउट करेक्टर है वो सिन है। नॉलेज विदाउट करेक्टर इज अ सिन। इफ यू हैव गॉट द नॉलेज एंड यू आर यूजिंग इट विदाउट करेक्टर, अब ये जो बम ब्लास्ट होते हैं, ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये आम लेबर नहीं होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आईआईटी इंजीनियर, आईआईएम के मैनेजमेंट, एमएससी इंजीनियर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे थोड़ी कोई बम बना लेगा। तो इनकी जो नॉलेज है उसके साथ करेक्टर नहीं है। दे कुड हैव यूज्ड दिस नॉलेज फॉर वेरी पर्पसेस, बट दैट नॉलेज इज बीइंग यूज्ड फॉर बैड थिंग। तो गांधी कॉल्ड इट थर्ड सिन। Commerce means business without morality and ethics. Business without morality and ethics. Business है किसी का, उसकी प्रोविजन स्टोर है, you will be shocked to know किस तरह की मिलावट होती है इंडिया के फूड जो हम खाते हैं। सैंपल सर्वे की के बाद ले लाल मिट्टी, जिसको पेंट के लिए यूज करते थे गांव में, हिरमची कहते थे उसको, हल्दी में पीली मिट्टी और काली मिर्च, पीते बीज और अबाबाल, गरम मसाले में घोड़े की लिद, ये चीजें पाई गई। तो ये बिजनेस है, इसमें एथिक्स नहीं है। वो मसाला बना के आप भगवान का भोग लगवाते हो और उसमें क्या सामान उसमें डाल रखा है, तो कितना बड़ा पाप वो लाला जहाँ वो जो बिजनेसमैन है, अडल्ट्रेशन, कमाल की। आप सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का ना जो है, कभी रिपोर्ट पढ़ो, क्या क्या चीजें मिलावट होती है, कैसी कैसी चीजें मिलावट। अभी सिंथेटिक दूध, जब मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, जब दूध का पनीर बनता है तो उसमें से पानी निकल जाता है। लीटर पानी में जो कास्टिक सोडा होता है, जिससे साबुन बनता है, वो डाल के डालेंगे, उसकी दूध है, वो दूध जो है अपने चल जाता है 7-8 घंटे। तो वो दूध आपके जाके लिवर का क्या करेगा। देन साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है। साइंस हैज गिवन अस थिंग्स, बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। लेकिन साइंस अगर विदाउट ह्यूमैनिटी हो तो, चाहे ये आप कोविड-19 की बात कर लो, इमेजिन करो कि अगर ये सच में बायोलॉजिकल वेपन है, पॉसिबिलिटी इज देयर, ये कॉन्शियसली बनाया गया हो और लीक हो गया। इमेजिन करो अगर ये सच में बायोलॉजिकल वेपन है, तो ऐसी साइंस को क्या करना है? ये तो सिन है। जुल्फी के में यूनियन कार्बाइड की बात सुनिए, लीक हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड, पुलिस वालों ही मर रहे हैं, जहरीली गैस। अभी भी लोगों की शक्लें बदल गई हैं, अपंग पैदा हो रहे हैं, और उसका अब जाके 30-32 साल के बाद, पता नहीं कितने साल के बाद, 84 की बात थी, 36 साल के बाद फैसला हुआ है उसका। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज सिन। दिस इज व्हाट गांधी जी सेज। रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, धर्म,
हम धर्म के लिए झंडे उठा के चल पड़ते हैं। हर एक धर्म का ये हाल है, चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे तू मुस्लिम है, चाहे तू सिख, एवरीबॉडी इज टची व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन लेने का नाम नहीं है, रिलीजन देने का नाम है। फॉर गांधी जिस रिलीजन में सेक्रीफाइस नहीं है वो रिलीजन भी सिन है। दूसरे को मारने के लिए नहीं, अपने आप को निशावर करने के लिए, दूसरों के लिए काम करने का नाम ही रिलीजन है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, लास्ट द वर्स्ट गेम। आई चूज टू ब्लेम कांग्रेस, इट्स नॉट ए गुड गवर्नमेंट। हमने उनको बाहर कर दिया, तो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं वो। वी ब्रॉट द न्यू गवर्नमेंट, द सेम थिंग्स आर बीइंग डन बाय द न्यू गवर्नमेंट। प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल की जो पॉलिटिक्स है, सारी दुनिया कहती है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड, और गांधी का कंसेप्ट और था स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बंदा भगवान होता है, अगर भगवान का डर पॉलिटिक्स में भी आ जाए, कॉन्शियस आ जाए लोगों में, तो फिर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही साफ हो जाएगा। तो ये 7 सिंस हैं, बहुत ही कमाल की चीज है। इनको अगर करें हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो थिंग्स विल बी वेरी गुड। तो मैं पहले एक बार अभी है 10-15 मिनट मेरे पास, पहले तो आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो थॉट्स की बात मैंने बताई थी कि एक भारत का कंसेप्ट देने वाले महात्मा गांधी। देयर वाज नो इंडियन नेशन बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग बैठ के अंग्रेजी बोल के एओ ह्यूम अंग्रेज की बनाई हुई चीज को हम इंडियन कह रहे हैं, नेशन तो था ही नहीं। तो आगे गांव में लोगों को साथ जोड़ के एक कंसेप्ट के, और वो जो कंसेप्ट है दैट इज इंडियन नेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम फादर। तो एक आपके लिए बहुत बढ़िया चीज जो आपको बहुत काम आएगी, वो भी मैं आज अपनी बात कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं गांधी जी की बातें कर रहा हूँ। कोई भी आप नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो, पिछली बार भी मेरा ख्याल हमने बात करी थी, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, या आप कोई मूवमेंट चलाते हो, अन्ना हजारे ने चलाई थी अकेले ने, तो अन्ना हजारे ने जैसे मूवमेंट चलाई थी अकेले ने, इसी तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट नया शुरू करते हो। एक मिनट होल्ड। यस, तो व्हेन यू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, मान लीजिए गांव से आया हुआ एक लड़का, और मैं आपको अपनी एग्जांपल ही देता हूँ, गांधी से मुझे बहुत कुछ मिला है। और आपको पता मैंने कभी गांधी स्टार्ट एज हेटर ऑफ गांधी। गांव में जब थे जोश होता था, हम भी भगत सिंह जैसी पगड़ी बांध के भगत सिंह जिंदाबाद है, बापू गांधी की फोटो क्यों लगी है, भगत सिंह तेरी फोटो क्यों नहीं लगती नोटा दे भाई, बापू गांधी है ना, क्या किया है फलाना। उसके बाद मैं आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं पॉलिटिकल साइंस की एमए कर रहा था, तो लकीली अपना जेआरएफ भी क्लियर हो गया। तो गांधी को पढ़ना शुरू करा एज ए क्रिटिक। किसी ने बोला कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, पहले उसके बारे में कुछ पढ़ो। ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। वंडरफुल। इतना सच बोलना हर बंदे के बस का नहीं होता। कमाल की सच्चाइयां अपनी लाइफ की बताई हुई हैं, और आप पढ़ के हंसोगे भी, मजा भी आएगा। और बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बुक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मस्ट रीड बुक है। तो आई स्टार्टेड एज अ हेटर ऑफ गांधी, पढ़ना शुरू करा। इतना इंटरेस्ट बना, इतना बना कि आई क्लियर्ड जेआरएफ इन गांधीयन स्टडीज, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और पीएचडी ही गांधीयन में शुरू कर दी। आप भी पढ़ना इंटरेस्ट बनेगा तो आपको बड़ी चीजें आएगी। तो उसमें ये चीज मुझे जो मिली थी, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आफ्टर डूइंग बीए इन पंजाबी मीडियम, दिस गाय myself, I did my BA in पंजाबी मीडियम। तो जहाँ लोग अंग्रेजी, हमें अंग्रेजी की लाइन नहीं बोलनी आती थी, कॉम्प्लेक्सेस। तो गांधी को पढ़ने के बाद सब कॉम्प्लेक्सेस उड़ गए। एंड टुडे एज हिमानी हैज टोल्ड यू, नॉर्थ कैलिफोर्निया बोल दिया था, दिस इज नॉर्थ कैरिलोना, फेट विलेज स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरिलोना। आई टीच गांधी इन दैट यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, नॉट इन पंजाबी। तो उसके लिए जो चीज गांधी थी ना, कि आफ्टर डूइंग बीए इन पंजाबी एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। लोग ये देखो यार, ये बेचारा सिविल सर्विसेज, वी डिड इट।
ऑल ऑफ यू नो PCS का मेरा केस पेंडिंग है, कभी भी डिसाइड हो जाएगा 11th रैंक। तो उसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ गांधी जी का, जिसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। ये मस्ट आप इसको नोट ही कर लेना। गांधी सेड, चाहे आप एजुटेशन की बात करो, चाहे नए प्रोजेक्ट की बात करो, कुछ लोग बिजनेस भी करेंगे, आप एक यूनिट खोल लोगे, या आप किसी मूवमेंट पे बैठ जाते हो कि आई वांट टू चेंज दिस थिंग, एजुटेशन स्टार्ट करनी है, अकेले भी कर सकते हो। उसका बहुत अच्छा गांधी जी की स्ट्रेटजी है। कहते व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, चाहे आप किसी जॉब की तैयारी शुरू कर रहे हो, चाहे आपने कह दिया कि मैंने MP बनना है, चाहे आपने कह दिया कि मैंने स्ट्रगल पे बैठ के इस चीज लॉ को चेंज करवाना है, चाहे आपने सोच लिया कि मैंने ये बिजनेस का यूनिट लगाना है। चलो हम गांधी जी के एग्जांपल से, एजुटेशन से शुरू करते हैं। आप गेट पे बैठ के अपनी फैक्ट्री के, कॉलेज के या ऑफिस के स्ट्रगल के ऊपर अकेले, यस, क्या होगा? फर्स्ट पीपल विल इग्नोर यू, पीपल विल इग्नोर यू। देखेगा ही नहीं कोई, एक साइड पे बैठा हुआ है, लोग अपनी मस्ती में निकल जाएंगे, कौन बैठा है, ऐसे कई बैठे रहते हैं। नो बॉडी विल टेक नोट ऑफ यू। उसने गत्ता बनाने की फैक्ट्री कई लगाते हैं यार, कई फेल हुए हैं, नो बॉडी विल टेक केयर ऑफ यू। सिविल की तैयारी कर कई करते हैं ऐसे, देखे हमने, नेशनल हॉबी है, 7 लोग करते हैं, 7 लाख लोग करते हैं, इसको भी करने दो। तो फर्स्ट पीपल विल इग्नोर यू जब आप मूवमेंट चलाते हो। सेकंड, दे विल मेक फन ऑफ यू। हैपेंड विद मी, दिस विल हैपन विद यू एज वेल। हाँ, ये देखो, ये आया अन्ना हजारे बनने, है ना, ये बनेगा IPS टॉपर, ये करेगा चंडीगढ़ को चेंज, ये लाएगा रेवोल्यूशन, ये बनेगा प्रधानमंत्री। फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, सेकंड दे विल मेक फन ऑफ यू। आप नहीं हटते हो, फिर भी डटे रहते हो, बैठे रहते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड विल अपोज यू। अच्छा अभी भी नहीं उठा, तो नाक में दम कर दिया यार इसने। दिस इज व्हाट गांधी यूज्ड टू डू। अकेले बैठ गया, वो क्या बूढ़ा बैठे रहने दो, इसको कौन पूछता है एक बूढ़े को, अकेले को। धीरे धीरे फिर देखा कि तो उठा ही नहीं, फिर मजाक उड़ाएंगे, हाँ ये एक नंगा फकीर, और ये सर ने वो भी आपके पाया था नेकेड फकीर, तो कहता था नंग तड़ंगा फकीर ना, बहुत चिढ़ता था इससे वो। तो फिर भी आप बैठे रहते हो, देन दे विल अपोज यू। उठा यार इसको, उठ ही नहीं रहा, गेट पे बैठा है इतने दिनों से, ये तो सच में कर जाएगा कुछ। फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, सेकंड दे विल मेक फन ऑफ यू, मजाक उड़ाएंगे, थर्ड दे विल अपोज यू। आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, प्रेस भी आ सकती है, जैसे आजकल ED के पर्चे खुल जाते हैं लोगों के, कि थोड़ा सा कर बेटा, तेरा ED का पर्चा खोलते तो बोल कैसे बोलता है ना, इस तरह की काम भी होते हैं। तो उसके बाद में फिर भी नहीं आप हिलते हो, फिर भी आप लगे रहते हो, फिर आपका जो अपोनेंट है ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंड फाइनली यू विन। सिंपल, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, गांधी सेज। फर्स्ट पीपल विल इग्नोर यू, कौन है, कोई आपको जानता नहीं है। सेकंड दे विल मेक फन ऑफ यू, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। थर्ड दे विल अपोज यू, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगी, एंड फाइनली यू विन। ये बात तो सेंट्स के ऊपर भी देखो, है ना, कैसे कि भगवान जब तपस्या के लिए बैठ जाते थे संत, पहले कोई नहीं पूछता था, बैठे रहते थे। धीरे धीरे तपस्या की अगली स्टेज आती थी, फिर उनका मजाक उड़ाने के बाद फिर उनकी उसको अपोज किया जाता था। वो देखो ना, अप्सराएं भेज दी जाती थी उनकी वो भक्ति भंग करने के लिए, या राक्षस आके उनके यज्ञ में फेंक देते थे, अपोज करते थे उनको, फिर भी वो नहीं हिलते थे, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, और फाइनली वो सेंट जीत जाते थे। तो दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। देयर आर सो मेनी एपिसोड, हर चीज के ऊपर ही हैज स्पोकन एक्सटेंसिवली, बहुत सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में कि इस पे डिस्कशन के, मुझे पता है जहाँ भी लेक्चर गांधी का होता है तो बड़े करारे सवाल आते हैं, आपके मन में भी हो गया, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल। तो हिमानी एंड सुमन मैम, मेरे ख्याल में डिस्कशन के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, एंड द डिस्कशन के लिए आप लोगों के लिए ओपन है, एंड आई एम रेडी टू आंसर ऑल। थैंक यू सो मच। Sir, I'm a commerce student and I never got any chance to attend your lecture because of my background, and like these BA political things are like not in my touch.
But today I have realized that why your student praise you this much. Indeed, it was. No, seriously, like I have always listened that घनश्याम सर की classes बहुत अच्छी होती हैं, and you know it's like वो बस एक बार बता दे, हमें learn करने की जरूरत नहीं पड़ती. हमेशा सुना है मैंने. But आज I can say that the way you taught, the way you spoke, it was amazing. I may like to express our sincere thanks to you, sir, for giving an excellent coverage on today's topic. It was a highly informative session, and we are all inspired by your great words. We'll see if anyone has any question. If anyone has any question, you can drop in the chat box and we'll surely be answering you that. You can ask directly also, no problem. Thank you very much, Amani, for speaking so high of me. Thank you so much. Guys, you can come up with your doubts. तो फिर तो मैं ही कंटिन्यू कर लेता थोड़ी देर और. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू पीपल एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन. जनरली गांधी के ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन चलती, लोगों के बहुत हाल होते हैं. Someone has written, please ask Khatri sir question. Hirak, yes? Hello, sorry for interrupting in between. Sir, first of all, a very congratulations for such a wonderful talk. It is always a delight to listen to you. Thank you. Sir, there is actually a misconception by which is taken by almost everyone, which is related to Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev death, or they were hanged till death. So, as Gurleen Kaur is also asking the same in the question she has dropped, I really wanted you to clarify so that the young minds like us can get a direction through. They are questioning that Mahatma Gandhi had an option that he could save Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev, but he failed. Why? Sir, please throw light on it. Thank you so much. And sorry, Mani Didi, for interrupting. You are doing a wonderful job. Bye. Thank you, Hirak. It's a very difficult question to answer, and I was expecting, because this when you are delivering a lecture on this area of India, especially Chandigarh, Punjab, this question is bound to be there. अभी all of you are grown up, और थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ आप लोग सुनना कि भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे, नहीं बचाया. ये हमेशा से ये बात आती है. अब थोड़ा सा इसके लिए मुझे 2 मिनट लगाने पड़ेंगे. भगत सिंह wrote only one article, Why I am an Atheist. उसको भी आप लोग पढ़ना. भगत सिंह जब बम फेंकते हैं तो वो किसी को मारने के लिए नहीं फेंकते हैं, राइट? और वो बम फेंकने के बाद भागते नहीं हैं. एंड ही टेल्स कि मैं आपकी आंख खोलनी चाहता हूँ, और मैंने खोल दी है. एंड भगत सिंह वाज नेवर अफ्रेड ऑफ फांसी, and he just wanted to ignite the minds of the young people. और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी डेड बॉडी लेने के लिए किसी बुजुर्ग को नहीं भेजना, मेरे छोटे भाई को भेजना, so that उसको भी थोड़ी आग लगे, गुस्सा है कि ये हुआ है हमारे साथ. he should also fight. अब दूसरी बात, जब गांधी की मीटिंग होती है इरविन के साथ, तो उसमें ये बात कि फांसी बल्कि एडवांस कर दी गई, तो उसमें ये बात कि क्या मतलब गांधी बचा सकता, गांधी ने बात करी कि नहीं. उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी अंग्रेजों का बड़ा कमाल का सिस्टम था कि जब भी उनको ना जब भी ये होता था, अपना बंद करें कैमरा, जब भी ये होता था, कोई भी मीटिंग कुछ भी होती थी, तो अंग्रेज जो क्या करते थे कि अपनी उस मीटिंग की सारी जो प्रोसीडिंग्स है उसको सील करके रख देते हैं, टू बी ओपन आफ्टर 33 इयर्स. तो गांधी इरविन की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं आर्काइव्स में. उसमें क्या बात हुई, ये बात नहीं थी कि गांधी जी ने, आप लोग इज इट विजिबल? ये कानू गांधी है, उनके ग्रैंड सन, उनकी इंटरव्यू है. गांधी जी ट्राइड हार्ड टू सेव भगत सिंह. ये उस रेफरेंस में, तो उसमें कैसे हुआ कि गांधी ने इरविन को बहुत स्ट्रेसफुली तो नहीं कहा, लेकिन बात चली कि हाँ जी, बात चली कि आप ये बताओ, ये भगत सिंह और what do you say?
He said, can anything be done in this case? See, not stressfully कि you stop it, don't hang them, ऐसा कुछ नहीं. तो Lord Irwin said, yes, but there is a process. आप मुझे एक बात का जवाब देना हिरक के प्रोसेस के बिना अंग्रेजों ने कभी कोई काम किया? सेट प्रोसेस क्या था कि भगत सिंह हैज टू राइट अ मर्सी पिटीशन टू हर हाईनेस क्वीन विक्टोरिया. क्वीन को पिटीशन लिखेगा, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा एंड स्ट्रांगली रिकमेंड करके, एंड क्वीन विक्टोरिया उसको माफी दे देगी और फिर भगत सिंह की फांसी टल जाएगी. आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या भगत सिंह कभी ऐसी मर्सी पिटीशन लिखते? अगर वो लिखते तो क्या वो भगत सिंह रहते? तो गांधी said, I don't think he will do that. He said, then I'm sorry. I don't have any power to stop his hanging. Let him write a mercy petition. I will forward it to the Queen, and the Queen will उसको क्वीन देखेगी मर्सी पिटीशन को, एंड उसके हाथ में है, वो इसकी फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकती है या माफी कर सकती है. तो उसमें आप लोगों को एज यंग, जो हम आपका हीरो, मेरा भी हीरो है भगत सिंह, तो भगत सिंह कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगते. अगर वो माफी मांग के फांसी रोक लेते तो आज वो हमारे लिए भगत सिंह नहीं थे. भगत सिंह इसीलिए भगत सिंह है कि उन्होंने यंग एज में, हम आज तक हमारे दिल में जिंदा है कि इतनी यंग एज में अपनी जान दिया है ताकि हमारे अंदर वो आग सारी उम्र जलती रहे. यही भगत सिंह है. दिस वाज हिज चॉइस, दिस वाज हिज ऑप्शनल, राइट. तो शहीद किसको कहते हैं ये याद रखना. शहीद ये नहीं कि कोई मरा और शहीद हो गया. शहीद वो होता है जिसके पास एम्पल चांसेस होते हैं टू सेव हिम हिमसेल्फ. Bhagat Singh has all the chances to save himself, but he opted death. ये होते हैं शहीद. तो ये नहीं है कि गांधी ने बात नहीं करी, और ये भी नहीं है कि बात नहीं चली. और इसमें अगर आप कहो कि गांधी who was गांधी couldn't save his hanging. इवन लॉर्ड इरविन जो वहाँ के वाइसराय गवर्नर जनरल थे, उनके हाथ में भी नहीं है. द पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ विक्टोरिया. उसका एक प्रोसेस है कि आप मर्सी पिटीशन लिखो और मर्सी पिटीशन के ऊपर वो कार्रवाई होगी, which never happened and which would have never happened also. तो ये रियलिटी है. वो आर्काइव में आप 33 ईयर के बाद सारे कागज खुलते हैं, तो उनकी आप इंटरव्यू जो है वो उसको पढ़ भी सकते हैं, उसमें रेफरेंसेस भी हैं. यस, एनीथिंग एल्स? Yes, sir. We have one more question. It says that Gandhian methods of protest had a moral value and created pressure on British. He used peaceful and non-violent method of protest like Bhuk Hartal, street marches, boycott of foreign goods, conversing with masses, and so on. But do you think such methods of protest have lost meanings and failed to create a moral pressure on the government of present day? Very good question. Who has asked this question? Who has asked this question, Imani? So NSS DAV College. No, sir, it's Khatri, a sir. side page. Okay. Khatri, sir. Khatri sir, I'm so grateful to you. You always attend my lecture, and that motivates me a lot. Thank you so much, sir. Okay, it's a very nice question. Ke his method was peaceful, non-cooperation, Bhuk Hartal. Are these methods still relevant or not? और आज तो बात ही गोली से होती है, हथियार से होती है, कि आज इनका रेलिवेंस है. तो माई शॉर्टेस्ट आंसर इज यस. और दूसरा इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ. जैसे गांधी जी ने स्टार्टिंग का हमारा जो डायलॉग था, डायलॉग ने जो कोटेशन थी गांधी जी की, आई हैव नथिंग न्यू टू टीच टू द वर्ल्ड, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज हिल्स. तो आई स्टिल स्टिक टू दैट कोटेशन कि ट्रुथ इज ट्रुथ. ट्रुथ को सर्दी में ठंड नहीं लगती, ट्रुथ को गर्मी में गर्मी नहीं लगती, पसीना नहीं लगता, वो ट्रुथ रहता है. तो पीसफुल प्रोटेस्ट के मेथड आज भी रेलिवेंट है, बल्कि मोर रेलिवेंट है. किसी भी वायलेंट स्ट्रगल का कोई रिजल्ट नहीं निकलता. कश्मीर में कितने सालों से चलती रही वायलेंस, कुछ नहीं हुआ. ISI जितने मर्जी वायलेंस से नेशन बना ले, वो नेशन फाइनली रिकॉग्नाइज नहीं होंगे. बात तो पीस से ही होगी. और बिगेस्ट एग्जांपल खत्री सर अभी आपने देखा, अन्ना हजारे की एग्जांपल. यू सी, बिल्कुल पीसफुल, नो वायलेंस, होल ऑफ इंडिया. मैं भी अन्ना हूं. आपको सेकंड बापू की छवि नजर आनी शुरू हो गई थी.
तो बिल्कुल रेलिवेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में वो गांधी जी वाली पेशेंस नहीं है। हमारे पास अब दूसरा गांधी नहीं है जिसकी कि अभी बहुत ज़रूरत है। तो मेथड रेलिवेंट है, मेथड्स इररेलिवेंट नहीं हुए हैं। हमारे पास लीडर रेलिवेंट नहीं है, हम रेलिवेंट नहीं है। मेथड्स तो कमाल के हैं, उसमें टुडे इवन टुडे दे आर एब्सोल्युटली रेलिवेंट, बड़ी अच्छी तरह से। यस, हेलो, हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. एनी अदर Sir, क्वेश्चन? yes, sir, we have. Sir, don't you think we forget so many freedom fighters? There were many unsung heroes too, but still, Gandhiji gets more glory than others. We respect Gandhiji too, but somewhat it is unfair to those violent fighters who ignited the fire of freedom. Very good. This is your question or somebody has asked No, it? this is Azad Singh Chauhan has asked this Okay, question. okay. So, good question, wonderful question. Yes, the freedom. अब आप देखो ना, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा, करतार सिंह सरावत, काउंटलेस नेम्स, बहुत ज्यादा हैं। तो जो आप ये कहते हैं कि दे हैव लॉस्ट इन ओब्लिवियन एंड गांधी हैज गॉट मोर वेटेज, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बात एक बता दूं कि एक लीडर होता है और एक उसके साथ, जैसे आर्मी में एक कमांडर है और उसके सिपाही भी हैं। क्रिकेट में एक कैप्टन होता है जैसे आपका विराट कोहली है, और एक टीम होती है। आप ये देखो कि जब ट्रॉफी मिलती है कौन लेने जाता है? कैप्टन लेने जाता है। जब टीम हारती है तो सबसे पहले गाज किस पे गिरती है? चाहे उसने 3 सेंचुरी लगाई हो सीरीज में, सीरीज हार गए 6-0 से, तो कोहली विल बी शंटेड आउट और ही विल हैव टू रिजाइन। तो जो लीडर होता है, अब आप थोड़ा सा अगर इंडिया से बाहर चले जाओ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड, आई हैव ट्रैवल अब्रॉड, तो वहां पे एक इंडियन का नाम ही लोगों को पता है, महात्मा गांधी। ओनली वन नेम दे नो, महात्मा गांधी। और जैसे वो है कि उनको ये भी कई बार लगता है कि इंदिरा गांधी शायद उसकी डॉटर थी। मैं आई वाज इन कनाडा, तो वहाँ पे एक लेक्चर हुआ, तो कहते यस 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 आई एम ए वेरी बिग, अंग्रेजन बोली, आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ हिज डॉटर, इंदिरा गांधी वाज ए वेरी गुड, द वेरी गुड लीडर एंड शी वाज डॉटर ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी को तो दुनिया भर के लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स हर एक बंदे का योगदान बहुत है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम ही नहीं आया। मैंने जो भी आपको बोला, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोगों को तो फिर भी हम जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, एक आप लोग कभी ट्राई करना, उसमें आजाद सिंह, ये एक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पुराना एक सीरियल बना था, कहाँ गए वो लोग, ये डीडी पे आता था जब हम, व्हेन वी वर ऑफ योर एज। तो उसमें अनसंग हीरोज, वो लोग जिनका कभी नाम पता ही नहीं चला, उन्होंने मोहल्ले अपने को ऑर्गेनाइज करके कैसे अंग्रेजों से लड़े, और किसी हिस्ट्री बुक में उनका नाम ही नहीं है। तो उसके ऊपर कहाँ गए वो लोग के ऊपर बहुत अच्छा एपिसोड था। तो ये होता है कि अब मार्टिन लूथर किंग हो या नेल्सन मंडेला हो, तो नेल्सन मंडेला का आपको अफ्रीका में पूछूं कितने शहीद हुए, तो आप किसका नाम लोगे? नेल्सन मंडेला। आपको क्या पता कि नेल्सन मंडेला तो भी जिंदा है, वह कितने ब्लैक मार दिए गए, कितनों की कितनी जबरदस्त शहादत है वहां पे, आप एक का भी नाम नहीं ले पाओगे, बिकॉज देयर कैप्टन, देयर लीडर इज नेल्सन मंडेला। हार जाते, आजादी नहीं मिलती, तो नेल्सन मंडेला वुड हैव बीन, अब जीते हैं तो फिर कैप्टन ही जीता है। तो इसलिए जो एक लीडर, भगत सिंह वाज इंडियन रिपब्लिकन, क्या था, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, उसके लीडर है। चंद्रशेखर आजाद भी उसके लीडर है। साउथ में अलग पार्टी है, उधर अलग है। तो एक जो आपको पूरे नेशन के साथ जोड़ रहा है, जो पूरे नेशन का लीडर है, वो पंजाब का नहीं है, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का नहीं है, वो तमिल का नहीं है, वो बाल पाल लाल गैंग का नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो एक ही है। वो मुस्लिम का लीडर भी है खिलाफत मूवमेंट में, वो सिखों का लीडर भी है, वो हिंदुओं का लीडर भी है, वो पूरे भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, वहां और कोई नहीं जाता है। तो इसलिए नहीं है लीडर जो एक सिंगल, जिसके साथ बात, अब देखो ना, वही बात मैंने करी थी, जाटों की मूवमेंट हुई, किसके साथ बात करती गवर्नमेंट, बताओ मुझे एक नाम। जब आपको आजादी की बात करनी है तो किसके साथ करेंगे?
आप जितनी मर्जी गोलियां चला लो, अब जितना मर्जी लड़ लो, फाइनली तो डॉक्यूमेंट पे साइन होने हैं ना, एक बात होनी ना, बात किससे होगी? एक लीडर से। एंड हु वाज दैट लीडर? गांधी। तो आपको लगता है आजाद सिंह जी के बेटे ज्यादा मिल गया? मुझे लगता है कम मिली है। थोड़ा सा आप एक मेरे सजेशन से उनकी एक बार ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ना, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। यस। So the next question is, was Mahatma Gandhi a conservative and an orthodox? In his weekly newspaper Harijan, he wrote an article about the modernity of the women in 1939, which received many objections and complaints. about but थोड़ी आवाज कट गई। about but article About the modernity of the women in 1939, which received many objections and complaints. He wrote an article in his magazine. एब्सोल्युटली करेक्ट। एक नहीं ऐसी, एक तो कुछ भी नहीं ऑर्थोडॉक्स की। मैं और बात बताता हूँ, गांधी जी जस्टिफाइड वर्ण सिस्टम, हिंदू और जो आपका है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज कोई इसको जस्टिफाई करेगा, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, अंदर करा देंगे उसको। गांधी जी जस्टिफाइड दैट आल्सो। और कैसे जस्टिफाई करते हैं? ही सेज, अभी आपकी उस मॉडलिटी की जो बात करते हैं उस पर भी मैं आता हूँ, कि जस्टिफाइज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। आप देखो कि जैसे पंजाबी एक कहावत है कि अगर जट दा पुत्र है ना तो सियाड़ खेत में सीधा खींचेगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। मरासी का बेटा रोएगा तो पूरी स्वर में रोएगा, उसके रोने में भी कलाप होगा, कभी सुनना। किस यू गो टू अ मरासी के सर पे रख, चल बेटा गाना गा, ही विल सिंग लाइक नुसरत फतेह अली खान, एनी ABCD, ऑल ऑफ देम आर सिंग। जैसे अनटचेबिलिटी है, that should be finished off, and there should not be on the basis of birth, be on the basis of worth, कि आपको जन्म मिल गया ब्राह्मण में तो आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण के घर जन्म लेके आप नीच काम करते, यू विल बी डिमोटेड टू शूद्र, शूद्र बनते हो, रैंकिंग इन द वर्ण सिस्टम। तो गांधी ने उसको भी जस्टिफाई किया। जब आप ये औरत वाली बात करते हैं, ठीक है ना, तो गांधी जी जब उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई तो उन्होंने क्या कहा, एक सबसे ब्यूटीफुल लाइन गांधी जी की है, वो इन मामलों me while reading my writings, you will find hundreds of contradiction. At many places I will contradict myself. So whatever I have said later, take that. मुझे पढ़ते हुए मैं अपने आप को ही काटता जाऊंगा बहुत सारी जगह पे। अब देखो ना, गांधी जी गीता के बहुत बड़े फैन हैं। गीता से कहते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा। अब गीता तो कहती है एंड जस्टिफाइज द मीन्स। कृष्ण कहता है उठा बेटा हथियार, काट दे अपने भाई को भी, अपने चाचे को भी, ताए को भी, गुरु को भी, सबको काट दे, क्योंकि तेरा एंड अच्छा है। मीन्स जैसे मर्जी यूज कर, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। लेकिन गांधी जी क्या लिखते हैं, एज यू सो शैल यू रीप, अ गुड एंड कैन नॉट बी अचीव्ड विद बैड मीन्स। अब गीता से इंप्रेस है लेकिन गीता को पोज कर रहे हैं। उसके बाद में पूछते गांधी जी आपने पहले तो ये लिखा था, ठीक है लिखा होगा, व्हाट आर आई हैव सेड लेटर, टेक दैट। कहता मैंने आपको बताया था मैं थर्ड डिविजनर हूँ, तो जो मैंने पहले लिखा मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने बाद में लिखा उसको लो। तो गांधी में उसको कोई शर्म नहीं थी कि मैंने जो लिखा है तो गलत है, अपने आप को गलत कहने में। ही नेवर फेल्ट शाई ऑफ दैट। और इसी तरह से बहुत सारी चेंजेस गांधी ने अपने विचारों में खुद की है कि आई एम ए लर्नर एंड विल कीप ऑन लर्निंग। तो एक बात खुद कह के उसको खुद ही काट देते थे। वो उस कंटेक्स्ट में थी, ये इस कंटेक्स्ट में है। आप देखो ना समा कैसे चेंज होता है। आज आपके देश में कानून पास होता है कि सेम सेक्स मैरिज हो सकती है, और इसी देश में वो अननेचुरल ऑफेंस था, 7 साल की कैद थी। तो कैसे लाइफ जो है चेंज होती है, डायनामिक है। नोबॉडी सो परफेक्ट, गॉड नहीं है कि आज से आने वाले 100 साल 200 साल बाद की बात सोच ले। कभी हमने सोचा था ऐसे बैठ के भी हम एक लेक्चर कर लेंगे, है ना। हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो चिट्ठी जैसे पोस्टमैन आता था तो एकदम से क्यूरियस होते कि हमारी भी आई हो चिट्ठी ना। फिर दोस्त चल यार मार्केट चलते, नहीं यार आज मैंने चिट्ठियां लिखनी है, तो 10-12 चिट्ठियां दोस्तों को, घर वालों के इधर। तो वो समा नहीं रहा तो ये समा भी नहीं रहेगा। तो गांधी ने ऑफ कोर्स वो चीज लिखी, क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन
वो ही वाज नेवर कट्टर इन चीजों के लेके। मैंने लिखा गलत है, चेंज कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वट एवर आई हैव सेड लेटर, टेक दैट। We have one last question. This is asked by लास्ट की बात नहीं है, और भी कोई पूछता पूछने तो कोई बात नहीं है, I'm free। अभी तक यही है sir. So two people have asked the same question. It says, how do we see Gandhian methods or ethics in present day international relations and past China continuous intrusions into Indian territories and the Panchsheel Siddhant? Okay, yes, good question. Panchsheel basically was a concept of Nehru, non-aggression, not interfering in the domestic affairs of others. तो आज की जो आप इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करते हैं, स्पेशली पाक एंड चाइना की, जो गांधीयन मेथड है या गांधीयन मेथडोलॉजी या टेक्निक है, मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जो नॉन वायलेंट मेथड जो है, अब आप कहोगे ना कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, गांधी को जाओ बैठाओ भूख हड़ताल पे बैठ जाए, कैसे बैठेगा, है ना, अब बॉर्डर पे गांधी जी को भेज दो, ये बातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन गांधीयन मेथड इज रेलिवेंट, बिल्कुल रेलिवेंट है। आपको आज की इस टाइम के ऊपर भी जो ऐसा लीडर हो जिसको पता पीसफुली बात करनी है, तो नेहरू की आज की डेट में हम बहुत सारी चीजें भूल गए। नेहरू वाज अ डिसिपल ऑफ गांधी। इसी चीज पे मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि इंटरनेशनल इमेज जो नेहरू ने बनाई, Nehru was the only leader who was equally loved in India as well as abroad. He was a staunch nationalist and at the same time he was an internationalist also. Two concepts of nationalism and international are antithetical. If you are a staunch nationalist, you cannot be an internationalist, क्योंकि अगर आप नेशन को इतना प्यार करते हो ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाकी दुनिया तो बेवकूफ है, हम सबसे ऊपर हैं। हिटलर फॉर एग्जाम्पल, he was staunch nationalist. वी आर द आर्यंस, नाजीज, सबसे ऊपर हैं, बाकी दुनिया सब बनी है कि हम उनके ऊपर रूल करें। तो दैट इंटरनेशनलिज्म, दैट नेशनलिज्म इज बैड। उससे इंटरनेशनलिज्म खत्म होता है और लड़ाइयाँ होती है। एक इंटरनेशनलिज्म होता है कि यू लव होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के आप सिटीजन बन जाते हो, और फिर आप नेशनली वो पॉपुलर नहीं हो पाते। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, एक पंजाबी च एक कहावत है, करो घर गवाया बारों पढ़ुआ कहाया ना, कि अगर अब लोगों के काम करते रहते हो सारा दिन, आपको बोलता भी ये मेरा काम करते, भाग के चले गए उधर चले, घर तो आपने इग्नोर कर दिया, घर इग्नोर हुआ तो घर से जूते पड़ेंगे, बाहर बड़े पॉपुलर हो गए, यार ये तो कमाल का बंदा है, इसको एक आधी शब्द बोलो उसी समय काम करता है। तो अगर आप घर के काम करते रहते हो, ये कौन है बंदा, यार तो सोशल बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेहरू हैड दैट सिस्टम कि ही वाज इक्वली नोन। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट कितनी बड़ी चीज थी, फाउंडर मेंबर उसमें नेहरू का ब्रेन चाइल्ड, और नेहरू ये चीजें कहां से ले रहा है, गांधी से। प्रॉब्लम इज नॉट, इंडो पाक पे भी बिल्कुल रेलिवेंट है। गांधी सीधे पाकिस्तान चले जाते, आप क्या कर लेते उनका। अभी जब गांधी की डेथ होती है, नथुराम गॉडसे गोली मारता है, तो किसी मुस्लिम ने थोड़ी मारा है ना, हमने हिंदू नहीं मारा। तो ही वाज गोइंग टू पाकिस्तान टू कन्विंस जिन्ना कि भाई कोई बात नहीं, तो आ, नेहरू को मैंने मना लिया है, तू यूनाइटेड इंडिया की डोर संभाल, मैंने अलग नहीं करनी। आपको पता है कितनी पेन है अपने घर को छोड़ के ना। हम अपने गांव जाते हैं ना, तो अभी भी आप लोग भी जाओ, अब हॉस्टल के कमरे में रहते हो ना, आई वॉज वार्डन फॉर 7-8 years, खत्री सर भी वार्डन रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो आएंगे, तो मेरा ना ये 33 नंबर कमरा था सर, तो बंदा कौन है, वो जी फलानी, वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, ये बहुत बड़ा चीफ कमिश्नर है, ये फलाना है। आके वो क्या करेंगे, दे विल किस द वॉल्स ऑफ द रूम, वो कमरे की दीवारें चूमते हैं, एक तो लिटरली मत्था टेकते हैं, लेट जाते हैं कमरे में आके, दिस इज द, अपने बच्चों को लाएंगे, फिर हम कहेंगे जी लड़कियां और लेडीज तो लौट नहीं सर प्लीज, मैंने अपनी बेटी को दिखाना है, एंड दे विल स्टार्ट वीपिंग। ये कमरा था बेटा, यहाँ मैं पढ़ता होता था, ये मेरा टेबल था ना, हम यहाँ मेरा रूममेट होता था, एक बार हमारा ये हो गया था, तो दे विल किस द वॉल्स ऑफ द रूम, हॉस्टल की। और जो लोग अपने घर ही छोड़ के आ गए थे, आपने सोचा है कितने लोगों का धन दबा हुआ पड़ा भी इंडिया में और पाकिस्तान में, सारा सोना गाड़ के आ गए। कभी वो आ गई ना रिमोट सेंसिंग ऐसी कि धरती के नीचे का सामान दिखा देगी, तो आप देख लेना कितना कुछ लोग बेचारे रख के गए। तो गांधी का क्या होता, गांधी तो पाकिस्तान जाता सीधा, इमरान के घर के सामने भी बैठ जाता भूख हड़ताल पे, उसको एयरपोर्ट पे रोक लेते तो एयरपोर्ट पे बैठ जाता।
गांधी का जो सिस्टम था ना, पढ़ोगे तो पता चलेगा, पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाता है और अपनी धोती से एक पुड़ी निकालता है, उसमें नमक होता है, तो पूरे अंग्रेज बैठे हुए हाउस के मेंबर भी, मंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर भी, और वहां होने लगती है मीटिंग, तो वो कहते हैं जी ये क्या है, उन्होंने सेब काट के रखे, तो गांधी ने अपना नमक निकाला और ऊपर डाल दिया। कहता है कि आप लोग मेरा नमक खा रहे हो 250 साल से, मैं आपका नमक नहीं खाऊंगा, मैं तो अपना लेके आया हूँ। छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर देते थे। तो ये नहीं है कि मेथड नहीं चल सकता, वही बात भले इंडो पाक पे भी, पाकिस्तान और चाइना पे भी चलता है, सब कुछ चलता है, चलाने वाला नहीं है। अब मेरे घर के सामने आपने एक जेट लाके मुझे दे दिया कि सर आपको जेट गिफ्ट कर दिया, लेकिन एक शर्त है कि आप खुद चलाओगे, है ना, तो मैं कहाँ से चला लूंगा, मुझे चलाने नहीं आता। तो ये नहीं है कि टेक्निक फेल हुई है, टेक्निक को यूज करने वाले नहीं है, ईदर एट द नेशनल लेवल, नॉट एट द इंटरनेशनल लेवल। यस Sir, I also have a question from you. यस सर, जैसे कि हम बोलते हैं कि गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसफॉर्मेशन में, गांधी played an eminent role in transformation, but quality should be imbibed in ourselves, so we make एक भारत श्रेष्ठ भारत। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? आवाज बेटा मुझे समझ नहीं आया आपकी। हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? योर नेम? सिमरन चावला। आवाज आपकी कट के आ रही है, जहाँ तो आप मेल उसमें बॉक्स में लिख दो, जहाँ थोड़ा ना आप अपने जहाँ पे ज्यादा आपकी रेंज आ रही वहां जाके पूछो। सर, हिमानी quality आपको समझ can आया? be imbibed। नहीं आया बेटा, हिमानी को No, समझ no, आया? no, अब no, थोड़ा sir. सा ना रेंज आपकी कम है, आवाज कट रही है। Simran, can you just type? I'll repeat the question for you. नहीं कोई ना, आप Just ट्राई type करो, it. थोड़ा आप यू चेंज द रूम, यहाँ पे ज्यादा रेंज है, वहां देख लो। यस ओके, जब तक ये कर रही है टाइप, आप कोई और एनीबॉडी एल्स? हाँ जी सर। सर, one has asked that, सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि मजबूरी का नाम गांधी? Like what is the story behind this? यस यस, ये इसका भी बहुत बड़ा मतलब है, सही बात है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये लोग कहते हैं। मजबूरी क्या होती है कि जब, हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। ये अरविंद कुमार पता कौन है सुमन मैम? ये अपने जो स्टाफ रूम में बैठ के ये भी प्रोफेसर बन गए, ये वो वाला अरविंद है। ये अपने स्टाफ रूम में बैठ के ना ये भी प्रोफेसर बन गया। देखो सवाल, मजबूरी का नाम। तो वैसे बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब इसलिए बनाया गया कि जैसे गांधी जी कहते हैं ना, इफ समबडी स्लैप यू ऑन योर फेस, तो उसको दूसरा साइड फेस का दे दो, ठीक है? तो वो कहते जी अगर दूसरे पे भी मार दे, है ना, तो यहाँ लोग जाके चुप हो जाते हैं। तो एक बंदे ने आपके थप्पड़ मार दिया, तो आप क्या है कि बंदा तकड़ा है, उसके आपने पैसे भी देने हैं, वो बॉक्सर है, आप 45 kg की बीमारी के मारे हुए हैं, ना आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसके पैसे मोड़ रहे हैं, उसने थप्पड़ मारा, तो दूसरा कहता आपकी बीवी साथ खड़ी है, आपका भाई खड़ा, क्यों है, तूने क्यों नहीं मारा? कहता नहीं, आई एम ए गांधीयन, मैं तो गांधी को, मैं वायलेंस में ख्याल नहीं रख, मैं विचार नहीं रखता, विश्वास, मैं तो गांधीयन हूँ, इसलिए मैं महात्मा गांधी की शांति वाली चीजों में विश्वास करता हूँ, मैं नहीं मारूंगा। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लोगों ने बोल दिया डरपोक। गांधी सबसे ज्यादा हेट करते थे कॉवर्ड से। He said, I will never, never, never prefer violence over non-violence except in one condition. मैं कभी भी नॉन वायलेंस के ऊपर वायलेंस को प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन एक जगह मैं वायलेंस को प्रेफर कर लूंगा। कहाँ? कहता यहाँ पे बंदा डर के नॉन वायलेंट बनता है। आई नीड द नॉन वायलेंस ऑफ अ ब्रेव मैन, नॉट ए कॉवर्ड। मुझे डरपोक डरूगा नॉन वायलेंस नहीं चाहिए, मुझे नॉन वायलेंस चाहिए एक दिलेर का। बॉक्सर है, खली है, बंदे को मार भी सकता है, लेकिन थप्पड़ खा के बैठ गया, उसने कुछ नहीं कहा। दैट इज नॉन वायलेंस। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए कि कर तो तू कुछ नहीं सकता, बेसिकली तो तू डरपोक है, तेरी हिम्मत ही नहीं उसका मुकाबला करने की, और बहाना क्या लगा दिया, मैं तो गांधीयन हूं इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
तो इसलिए कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अदरवाइज महात्मा गांधी हेटेड द कॉवर्ड्स को सबसे ज्यादा हेट करी है। Sir, Simran wants to ask that what qualities can be imbibed in ourselves to transform the world to make Ek Bharat Shresth Bharat and also reflect on Gandhiji idealist theory. गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेटा इतनी देर से हम वही बात कर रहे हैं, गांधी जी आइडियल। मैं जो बता रहा हूँ आपको, देखो उन्होंने एक भारत बनाने के लिए कास्ट खत्म करने का कितना अच्छा तरीका बताया, इंटरकास्ट मैरिज करो, कन्विंस योर पेरेंट्स, लेट अस स्टार्ट अ मूवमेंट कि वी विल हैव ओनली इंटरकास्ट मैरिज। अब अफेयर चल गया वो तो अलग बात है, उसमें तो कास्ट नहीं, अगर अपनी कास्ट से चल गया दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज कितना बड़ा, लेट अस स्टार्ट अ प्रोटेस्ट कि आप रिजर्वेशन इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं देते हो। दिस वाज गांधीज ड्रीम। देखो कैसे कास्ट खत्म होती है, एक बनता है भारत। फिर दूसरी बात कि हमें इनटॉलरेंस क्यों है दूसरे के लिए। अगर गांधी खिलाफत मूवमेंट के लीडर बन सकते हैं तो आज लीडर क्यों नहीं बनते। आप सिर्फ अपने धर्म के लीडर ही क्यों हैं। सिख का लीडर है तो सरदार ही क्यों होगा, मुसलमान का लीडर है तो मुस्लिम ही क्यों है, हिंदू का लीडर है तो हिंदू ही क्यों है। क्योंकि अब हमने अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज्ड कर लिया है, बांध लिया है अपने उस छोटे से दायरे में कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। और ये जो हेटेड है एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। और एक मैं आप लोगों को अपने बच्चों की तरह आप लोग हो और कुछ मेरे साथ में कलीग्स हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको 10 साल बाद 15 साल बाद पता चलेगी। आजकल बड़ी हेट चल रही है गांधी के लिए, नेहरू के लिए, बड़ा कुछ है। लेकिन ये आप रिमेम्बर करना, मेरा एक जन्ना मैंने गांधी और नेहरू को रखा, मेरी अपनी नेहरू के सारे जो कलेक्टेड वॉल्यूम्स मैंने खुद खरीदे था, वो 200 रुपए का एक वॉल्यूम होता था, आजकल वो 4000 का एक है। यानी कि बुक्स की नहीं बढ़ती, बुक्स की भी बढ़ती है। आने वाले टाइम में अब जिस दिन की थॉट को हम इस देश से मायने तो इस देश का भगवान ही रखा होगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। इस देश में दुनिया के सिर्फ एक कंट्री को छोड़ के सबसे ज्यादा मुस्लिम इस कंट्री में हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा सिख इस कंट्री में हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट इस कंट्री में हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे हम इसको एक रिलीजन का सोच सकते हैं। तो जो गांधीयन थॉट है एक भारत वाली, उसको तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा। उसी एक भारत से श्रेष्ठ भारत होगा। अगर 22 करोड़ मुस्लिम, 3 करोड़ सिख या बुद्धिस्ट या कोई भी अपने आप को आइसोलेट फील करेगा तो फिर ये नेशन जो है वो प्रोग्रेस नहीं करता। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी है अगर हम गांधी जी की थॉट को साथ में रखें। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि ऑल ऑफ अस, मैंने आपको बताया था ना, आई स्टार्टेड एज ए हेटर ऑफ गांधी। तब मैं गांधी को गालियां ना निकाली होती, हेट ना किया होता तो मुझे कब पता चलता कि यार इतना कुछ पढ़ने के लिए था। आप जब एक बार ऑटोबायोग्राफी पढ़नी शुरू करोगे तो यू विल रियलाइज इट, क्या बात थी यार। अब बताओ ना मुझे कि क्या था उसके पास बंदे। मैंने स्टार्टिंग में बताया शक्ल दिखने में आपको देख ही लिया और कि कैसी शक्ल थी, लेकिन दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग फोटो खिंचाने के लिए तरसते थे। 3rd डिवीजन में लॉ करी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बड़े जज सलाह लेते थे। बर्ट्रैंड रसल जैसे फिलोसफर जिनके आगे सर लगा हुआ है, सर बर्ट्रैंड रसल, वो सलाह लेने आते थे। आइंस्टाइन जिसको आप दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा मानते हैं, वो लिख रहा था दुनिया विश्वास ही नहीं करेगी हड मास में कोई बंदा घूम गया गांधी नाम का इस धरती पे। तो गांधी को समझने में हमसे बहुत सारी ढील हुई है और हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और जो लोग क्रिटिसिज्म कर देते हैं गांधी तक्के से फोटो लगवा गया, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने गांधी को पढ़ा ही नहीं है। तो बंदा कहता है पढ़ना क्या है, तो नहीं पढ़ना तो भाई हम क्यों। आप किसी का क्रिटिसिज्म कर दो, किसी की ड्रेस देख के, कुछ भी देख के, तो आपको पता तो है नहीं उसके अंदर क्या है, राइट। अष्टावक्र तो आपने सुना ही है ना, अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र जब जाता है जनक की सभा में तो उसके अष्टा मीन अष्ट, 8 वक्र मीन बाल, कर्व, 8 कर्व थे उसकी बॉडी में, 8 कर्व्स। तो लोग देख के हंस पड़ते हैं। तो जब वो अपने विचार करता है तो सारे सुन्न हो जाते हैं। कहता ये तो कहता राजा तेरी महफिल में सारे चमार बैठे हैं यार। कहता मीन्स, कहता ये चम की पहचान करने वाले, ये ब्राह्मण थोड़ी है जो चम की पहचान कर रहे हैं, इनको पहचान ही नहीं है। ये तो मेरे वक्र देख रहे हैं बॉडी के, ये जो मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ उसका तो इनको पता ही नहीं है मैं क्या करूंगा। फाइनल उसके बाप को जिसने डेथ की सजा दिलाई थी कि उसके साथ शास्त्रार्थ हुए थे, खत्री सर को याद होगा उसका क्या नाम था, ऋषि का, कि वो जो उसके साथ पंगा लेता था
अगर वो जीत जाता तो उसको 1100 गूंगे मिलती थी सिंगों के ऊपर सोना लगा के। अगर वो हार जाता था तो उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी। तो अष्टावक्र के बाप को उसने जल समाधि दी थी। तो फाइनली अष्टावक्र उसको हराता है तो लास्ट में पूछता है, वो हार जाता है तो वो जल की ओर चलता है, मैं जल समाधि लूंगा, कहता रुक जा, मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। वही जो बात करी ना गांधी ने, नॉलेज विदाउट कॉन्शियस, कि मेरे में कॉन्शियस भी है, नॉलेज तो भगवान ने दी है, कॉन्शियस भी है। मैं तुझे जल समाधि दिलाने नहीं आया हूँ, मैं तो भैया ये बताने आया हूँ कि जो तू कर रहा है ना अपनी नॉलेज का इतना मान करना, वो ठीक नहीं होता। राइट? तो थॉट को हमने जब तक बंदे की नहीं देखा तब तक हम कुछ प्रोटेस्ट नहीं। की बुक देखो अपने इसके ऊपर कार्ल डैश की, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं गांधी थॉट के ऊपर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, एक और करा बहुत चक्कर पर दिन पर देगा Thank you so much, sir, for this wonderful session. ये हाँ जी, यस। Thank you so much, sir, for this wonderful session. I hope that the doubts of our participants have been clarified now. Now, I would like to request everyone to switch on their videos for a group photograph and do not switch on your mics. And please smile and wait the moment you will click the picture, let me know. मैंने तो पूरे लेक्चर में काफी स्माइल कर लिया वैसे। Now it's the time for others to smile. Please switch on your video so that we can take a picture. Before I ask Suman ma'am to present a vote of thanks, I would like to tell to all the participants that we have shared a feedback form in the chat box. Kindly fill it ASAP as we'll be accepting the responses till 2 p.m. only. Once you fill the form, the certificates will be sent on your email IDs. Kindly note that the link will not be shared in the WhatsApp group. Now, I request Dr. Suman Kapoor ma'am, the NSS Programming Officer, to propose a formal vote of thanks. Thank you, Himani. Am I audible? Yeah, Yes, Bilkul, ma'am, ma'am. you are. Welcome, ma'am. You are audible. Good afternoon to all. Today we are celebrating 74th Independence Day. Sardar Patel gave us Ek Bharat. Now it is the duty of 130 crore Indians to collectively make Shresth Bharat by creating an environment which promote learning between the states by sharing best practices and experiences. First of all, I would like to present our great sincere gratitude to Principal Sir for always motivating to carry out NSS activities. Now I would like to thank to the keynote speaker of today's event, Dr. Ghanshyam Dev Sir, to enlighten us on Gandhiji thoughts for Ek Bharat Shresth Bharat. Sir elaborated in lucid manner about the Gandhiji's role in freedom, why Gandhiji is called the father of nation, his sacrifices, his excellent leadership qualities. He also laid stress on the importance of humility and faithfulness. Thank you, sir, for sparing your valuable times for motivating the youth who are torch bearers of future. Sir, your talk was so interesting, wonderful, inspiring, and motivating to all of us. On behalf of all the program officers, me, Dr. Sandeep, Dr. Bhushan, I would like to thank you again. Thank you, sir. अब मैं सभी वॉलंटियर से कहूंगी कि अपना माइक ऑन करें और बोले जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Not me, but you. Not me, but you. Not me, but you. Thank you very much, sir.
Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. ma'am, for these kind words. Thank you, Ghanshyam sir, for this informative session. Now our knowledge on Gandhiji has surely been widened. जय भारत. In the end, I would like to say, great countries have great histories. Grateful histories are written with great pain and struggle. Great were those who fought to bring this day in India's history. Happy 15th August, everyone. Thank you, everyone, for joining us today. Participants, kindly fill up the feedback form if you haven't filled it yet. The link has been already shared in the chat box, and after this, you are allowed to remove yourself from this webinar. Thank you, sir. Again, thank you to all the participants. Thank you to the NSS programming officers for your gracious presence. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Khatri sir, also. खत्री सर, ये सर और अपने मीनू बडेरा मैम, जितने भी टीचर्स आए ना, वी आर सब, मेरी ओर से भी उनका बहुत बहुत थैंक्स. अपने क्लिक को सुनना बड़ी हिम्मत की बात होती, कौन सुनता है. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच. हमने बहुत एंजॉय करा सर, वी एंजॉयड अ लॉट, और थैंक यू वेरी मच मीनू बडेरा मैडम, खत्री सर. थैंक यू सो मच.